बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। साथियों, आज मैं एक बार फिर बलोचिस्तान के सरजमीन पे खड़ा हूं, अपने बलोच भाइयों और बहनों के दरमियान खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलोचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। इसलिए उनको मालूम है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनता है, अगर वजीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला इनके तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। वो जानते हैं कि मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि जिस तरीके से मैं बलोचिस्तान का दुख और दर्द को एहसास करता हूं, इस मुल्क में कोई वफाकी सियासतदान में ये एहसास नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि मेरे बलोच भाई, मेरे बलोच बहन किस दुख से, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं और मैं बलोचिस्तान का शोदा का दुख समझता हूं। वो जानते हैं कि मैं बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूं। वो जानते हैं कि मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, मगर ये भी जानते हैं कि इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। ये जानते हैं कि जो वफाक के खिलाफ अगर कोई साजिश है, अगर कोई वफाक को तोड़ना चाहते हैं, अगर कोई बलोचिस्तान के अवाम और वफाक के दरमियान दरारें पैदा करने चाहते हैं, तो वाहिद बिलावल भुट्टो जरदारी है जो ये साजिश भी नाकाम करेगा। वो जानते हैं कि हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। वो जानते हैं कि हम बिला तफरीक खिदमत करते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो घबराता नहीं है। हम अपने पांव पे खड़े होकर तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर अपने अवाम के हक पे सौदा नहीं कर सकते। वो जानते हैं
کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کو اپنا حق دلوا سکتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ صدر زرداری کا 18ویں ترمیم پہ اگر پوری طریقہ سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کا NFC ایوارڈ پہ پورا طریقے سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج پہ پوری طریقے سے عمل درآمد ہوتا تو آج بلوچستان میں اور بلوچستان کے ارد گرد جتنے بھی سازشیں پک رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کے عوام کا جو اصل مسئلہ ہے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح بھی حاصل کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک بار پھر میری پارٹی کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاید یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ ان کی بھول ہے. نہیں ہٹے گا. یہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں ان سازشی قوتوں میں، ان دہشت گردوں تنظیموں نے میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ کتنے حملے کیے ہیں. مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، تربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا. 2 حملے ہوئے تربت پہ، ایک اصغر ہند صاحب پہ اور دوسرا ظہور بلیری صاحب پہ. بولان میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، ہمارا کارکن شہید ہوئے. کوئٹہ میں ہمارا سابق جو صوبائی صدر ہے جھٹک صاحب، اس پہ حملہ ہوا. اور حال ہی میں یہاں آپ کے خزدار میں آغا شکیل دورانی صاحب پہ حملہ ہوا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ حملے دیکھ کے گھبرا جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہم بہادروں کے جماعت ہے، ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے. ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے، کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم ان کی اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کو دکھائیں گے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش ہوگی. میں بلوچستان کے خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی
मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपका खिदमत वैसे करूंगा जैसे एक बेटा अपनी वालदा की खिदमत करता है। मैं बलोचिस्तान के अपने भाइयों को, अपने बहनों को बताना चाह रहा हूं कि मैं आपकी तरह नौजवान हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं जिंदगी भर आपका नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपके साथ जो हमारा रिश्ता है वो किसी एक इलेक्शन की वजह से तो नहीं है, हमारा तो तीन नस्लों का रिश्ता है। मैं आपका आवाज बन के अगर मैं पार्लियामान में पहुंचता हूं तो बलोचिस्तान के अवाम को ये मालूम है कि उनका नुमाइंदा वहां बैठा है, उनका आवाज उठा सकता है। अगर मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका नुमाइंदा बन के तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं अगर मुल्क का वजीर खारजा बना तो आपके आवाज बन के दुनिया भर में आपका आवाज उठाया, आपका नुमाइंदगी की। अगर इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट की वजह से मैं आपका वजीर आजम बनता हूं तो वजीर आजम के घर पे बलोचिस्तान के अवाम को मालूम होगा कि उनका नुमाइंदा बैठा है, उनका भाई बैठा है, उनका बेटा बैठा है। साथियों, ये जो आजकल मुल्क के हालात है, एक तरफ एक तारीखी मुआशी बहरान है, दूसरी तरफ दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं, तीसरी तरफ तो हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, ये पुरानी सियासत की वजह से, लाहौर के सियासतदानों की सियासत की वजह से, तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, इनकी हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका है। सिर्फ अवाम का खून सस्ता है, सिर्फ बलोच का खून सस्ता है, सिर्फ हमारा खून सस्ता है। मैं एक नई सोच लेके मैदान में आया हूं। मैं आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूं कि चुनो एक नई सोच को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो आपका इन तमाम मसाइल से, आपको इन तमाम बहरानों से निकाल सकती है। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा है, 10 नुकाती एजेंडा है, हमने तय किया है। ये मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं वफाक का जो वो 17 वजारतें हैं जिनको 2015 में डिवॉल्व होना चाहिए था, जिनका सालाना 300 अरब रुपया खर्चा होता है, जाया होता है, वो 17 वजारतें को बंद करके ये सालाना 300 अरब रुपया का रकम बलोचिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं जो सालाना इस मुल्क के अशराफिया को पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी दिलवाता है, आपकी टैक्स की पैसा से जो सब्सिडी दिया जाता है, आपको मालूम है वो कितना है? सालाना
1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। मैं बलूचिस्तान के अवाम से वादा करता हूं कि मैं ये अशराफिया से ये पैसा छीन के आपका जेब में दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा वादा है बलूचिस्तान के अवाम से कि आपकी आमदनी में मैं ना सिर्फ इजाफा करूंगा मगर इंशाअल्लाह ताला इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मेरा वादा है इस सूबा के अवाम से कि मैंने जिस तरीके से सिंध में 20 लाख घर बना रहा हूं सिला मुतासरीन के लिए, वहां के जो मालिकाना हुकूक है उन घर में रहने वाले खवातीन को दे रहा हूं, वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी 30 लाख घर बनाऊंगा। मेरा वादा है, एक लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। जब भी ये बात किया जाता है मुझे हंसी आती है, मैं परेशान हो जाता हूं कि क्या हम कोई दूसरा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप इसी खुशदार के अवाम से पूछे, आप मेरे कंबर शदात कोट के मेरे लारकानों के अवाम से पूछे, आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा, बाकी पाकिस्तान आज भी अंधेरे में है। यही तो वजह है कि मैं पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूं कि इन पे हमारा भरोसा अब उठ चुका है। हम ना वापदा से उम्मीद रखते हैं, ना ये जो वफाक के पावर मिनिस्ट्री पे उम्मीद रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अपना बंदोबस्त करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला इस सूबे बलूचिस्तान के हर जिला में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाऊंगा, अपना सोलर लगाऊंगा, अपना विंड पावर लगाऊंगा। हम अपना बिजली बना के कम कीमतों पे अपने अवाम को वह बिजली पहुंचाएंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो हकदार है, उनको इंशाअल्लाह ताला मैं 300 यूनिट मुफ्त सोलर की बिजली दिलवाऊंगा। मैं अपने बलूचिस्तान को खवातीन को यकीन दयानी दिलाना चाह रहा हूं कि मैं ना सिर्फ आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा मगर इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के खवातीन के लिए बिलासूद कर्जा के बंदोबस्त करूंगा ताकि हमारे बलूचिस्तान के खवातीन अपनी कारोबार करे, अपनी खानदान के को मदद करे और मुल्क की मीशत में अपने किरदार अदा करे। आप मेरे बलूचिस्तान के छोटे किसानों को बताए कि बिलावल भुट्टो आएगा तो अशराफिया का सब्सिडी खत्म करके तमाम छोटे किसानों को बेनजीर किसान कार्ड दिलवाएगा और आपके जेब में पैसा, आपको अगर खाद की सब्सिडी देनी है तो किसी बड़ी बड़ी कंपनी के बजाय मैं सीधा अपना किसान की जेब में यह पैसा दिलवाऊंगा। आप मेरे बलोच मजदूरों को, मेहनत कशों को, मेहनत करने वालों को बताएं कि इंशाअल्लाह ताला मेरा हुकूमत बनेगा तो मैं बेनजीर मजदूर कार्ड लेके आऊंगा और बलूचिस्तान के मजदूरों को उनका अपना मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। मैं बलूचिस्तान के नौजवानों को, अपने भाइयों से, अपने बहनों से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा और बलूचिस्तान के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उनको मैं ये कार्ड दिलवाऊंगा ताकि उनको माली मदद मिले जब तक उनको रोजगार ना मिले, या जब तक उनको रोजगार मिले। मैं इंशाअल्लाह ताला भूख और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए
यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम चलाऊंगा। मैं अपने जो स्कूल्स हैं, अपने तालीमी इदारों हैं, वहां मैं बलूचिस्तान के बच्चों को खाना खिलाऊंगा ताकि हम भूख का मुकाबला करें, हम गुर्बत का मुकाबला करें। मैं बलूचिस्तान के अवाम को अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, हाथ बांध के कहता हूं कि तशद्दुद की सियासत ना करें, दहशतगर्दी की सियासत ना अपनाएं। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क बनाया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गोली भी नहीं चलाया, मगर पूरा पाकिस्तान बना के दे दिया हमें। आप अपना सियासत करें, आप अपना तहरीकें चलाएं पुरअमन तरीके से, किसी और को मौका ना दो कि हमारे बच्चों के, हमारे बलोच बच्चों का, हमारे बलोच बहनों के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। वो जो दहशतगर्दों का सर फिर से उठ रहा है, मैं खुद वो सर काटूंगा। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलूचिस्तान के अवाम के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है, इनको मालूम ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। आखिरकार इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। हम 2024 में है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाता है, जब कभी हमारा कोई भाई तो कभी हमारा कोई बहन इस इशू को उठा के एहतजाज करते हैं और उनको हम जवाब भी नहीं देते, उनसे हम बात भी नहीं करते। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से जो इंटरम हुकूमत है, जो गैर सियासी हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज किया, वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपको याद होगा जब सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो कितना स्पॉन्सर्ड तहरीक हमारे खिलाफ शुरू किए गए, मगर सदर जरदारी ने हर किसी के साथ सियासी तौर पे एंगेज किया, एक खलूस नीयत के साथ उनका मसाइल का हल निकालने का पूरा कोशिश किया। यही तरीका है कि हम, चाहे वो बलूचिस्तान का मसले हो, चाहे वो सिंध के मसले हो, चाहे वो पश्तूनख्वा के मसले हो, हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तरीक़ेकार था, जो सदर जरदारी के मुफाहमत का तरीक़ेकार था, उसको अपना के बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। आखिरी बात जो मैंने पिछली बार भी कहा और मैं आज एक बार फिर दोहराना चाह रहा हूं, कुछ कुव्वतें ये साजिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, बलूचिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम आपस में लड़ पड़े। वो इस तकसीम का फायदा उठाते हैं, वो इस लड़ाई का फायदा उठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं 8 फरवरी के बाद ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर साजिशें पक रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की बाहर साजिशें पक रहे हैं। और ये कब तक चल सकता है कि हमारा 4 हमसाया मुल्क है, तीनों से तीन ममालिक से हम लड़ रहे हैं, 3 ममालिक से हम कारोबार तक नहीं कर सकते। एक ही हमारा दोस्त चीन रहा है, उनको भी दहशतगर्द से लेके कुछ कुव्वतें
دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی تمام ممالک سے انگیج کریں گے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو ہو. ہم بات کر کے، ڈپلومیسی کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ میرے بلوچستان کے عوام کاروبار کر سکے، ترقی کر سکے. کاروبار چاہے وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنا چاہے، چاہے وہ بھارت کے ساتھ کرنا چاہے، یہ ان کا حق ہوگا، یہ ان کا حق ہوگا کہ اپنے عوام کی ترقی کا بندوبست کرے. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندرونی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، پاکستان کے تمام سیاسی قوتیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لے کر آ کے ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو خارجہ سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور خارجہ سطح پر جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں. ساتھیوں، صدر زرداری نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میرے بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا. اس کے پیچھے سوچ یہ تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچے گا. ان تمام پسماندہ علاقوں کو، ان تمام دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کو میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر اعظم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا. اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا. جو سی پیک نے پختونخوا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا تھا، اس کا رخ تبدیل کر کے لاہور سے لے کے گئے اور لاہور میں آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اورنج ٹرین بنانے کے لیے. اس کا نقصان سی پیک کا منصوبہ کا ہوا. بلوچستان میں جو ترقی ہونا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا. مگر یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہمارا حکومت پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوگا. ہمارا حکومت دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کا حکومت ہوگا. اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو پسماندہ علاقے ہیں، جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں، وہاں سے ہم اپنا منصوبے شروع کریں گے. اگر وہاں معاشی ترقی ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکتا ہے. آپ نے 8 فروری کو ان تمام سازشوں کو ناکام کرنا ہے. آپ نے 8 فروری کو پورے بلوچستان میں اپنی ووٹ کی طاقت سے ان تمام سازشی قوتوں کو شکست دلوانا ہے. تیر پہ تھپا لگانا ہے، تیر کو جتوانا ہے. بلوچستان کا نشان کیا؟ خزدار کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کے نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو تیر کی جیت ہوگی، آپ کی جیت ہوگی. اور اس کے بعد ہم مل کے محنت کریں گے، مل کے جدوجہد کریں گے. خدا حافظ.